SN1 mechanism is of two step. It is a two-step mechanism. It is a two-step mechanism. Now, in the first step, what happens? And in the second step, what is going to take place? We'll see. Now, first step involves formation of carbonium ion, while in second step nucleophile attacks on the carbonium ion forming the product. So it is clear that first step is formation of carbonium ion, formation of carbonium ion, and the second step is attack of nucleophile. Second step is attack of न्यूक्लियोफाइल. अटैक किसके ऊपर होगा? अटैक होगा कार्बोनियम आयन पे. ओके, कार्बोनियम आयन हम इसके पहले पढ़ चुके हैं. अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं या फिर कार्बो कैटायन कहते हैं. कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे कार्बो एनायन कहते हैं या कार्बेनियन कहते हैं. ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो आयोनाइज हो जाता है. तो हम पहली स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. नाउ विल सी द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? नाउ वी हैव tertiary butyl bromide. Okay, and this tertiary butyl bromide is undergoing the self ionization. Let's see, ionization. And because of ionization, what's happen? There is a dissociation of carbon and bromine bond. This carbon and bromine bond is dissociating and this bond is breaking. And we know that bromine is a halogen and which is more electronegative than carbon. So during the breaking, what happens? The two electron which is present between the bromine and carbon is shifted on bromine, and bromine leave as a bromine negative ion, that is bromide ion. Now what we have remaining? Remaining is only this group. Now this group like this. After the dissociation or after the breaking of CBr bond, carbon and bromine bond, this molecule dissociate and forms carbonium ion, that is tertiary butyl carbonium ion. Tertiary butyl carbonium ion, and this is
bromide ion. So this is a self dissociation, and after this there is the formation of carbocation. Now what happened here? The tertiary butyl bromide, in this molecule there was the bond angle of 109. Means what we can say here, this carbon was sp3 hybridized. Okay, during the classification of alkyl halide we have seen that CsP3X, so this type is here, and in sp3 standard bond angle is 109 degree and 28 dash, that is the standard. Okay, but now this configuration is changed to this. Here कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यहाँ पे वैलेंसी 4 है, यहाँ पे वैलेंसी 3 है. ओके, तो अब यहाँ पर वैलेंसी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी 3 हो गई है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 120 डिग्री. ओके, हियर बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. मीन्स कॉन्फ़िगरेशन में अभी चेंज आ गया है. ओके, 109 का एंगल था यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगल कितना है, 120 का एंगल हो गया है. 120 का एंगल होने की वजह से ये जो हो चुका है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन चुका है. कौन सा स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, ये एक प्लेन में आ गया है. ओके, क्या होगा इसमें, इसमें कार्बन होगा सेंटर में, उसी प्लेन में एक CH3 होगा, दूसरे प्लेन में, उसी प्लेन में दूसरी साइड में 120 के एंगल से दूसरा CH3 ग्रुप होगा, और फिर तीसरा CH3 ग्रुप होगा, जो सबके सब क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे. और इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है, ये कैटायन जो है वो प्लेनर हो जाएगा. अब प्लेनर होने की वजह से क्या होगा कि जब दो ग्रुप्स में एंगल बढ़ गया है, दो ग्रुप्स में एंगल ज़्यादा हो गया है, तो कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, अपनी एंट्री ले सकता है. ओके, तो ये हमने एक स्टेप देखा. ओके, जिसमें हमने देखा कि कैसे सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ है. नाउ इन सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन carbocation. Now we have carbocation. This is the carbocation and this carbon is positively charged. अब मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे CH3 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 मैं लिखूँगा नहीं. इन बॉन्ड्स का मीनिंग यही है कि वहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है. अब आ गया है कौन, न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है. अब क्लाइमेक्स सीन है. अब हमारे मूवी के अंदर क्लाइमेक्स सीन है. अब इसमें क्या होगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा. स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इस स्टेप को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, एंड व्हाट हैपन, दिस इज ए स्लो स्टेप. ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है. और जो पहला स्टेप था आयनाइजेशन का, वो फास्ट स्टेप था. अब स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, बाय प्रैक्टिकल. ओके, नाउ दिस हाइड्रोक्सिल आयन विल अटैक हियर ऑन positively charged carbon and gives the product. Here the formation of COH बॉन्ड. पहले स्टेप में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरी स्टेप में कार्बन
और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ओके, दिस इज, यहाँ पर पता है हमें कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से क्या हो चुका है, 109 हो चुका है। ठीक है, नाउ CH3 CH3 CH3, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन गया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ this is the SN1 reaction, or this is the SN1 mechanism. Now what we can say, since the carbonium ion is planar, the attack of nucleophile OH negative ion is equally possible from either side of the plane to give tertiary butyl alcohol. ओके, देखो अब यहाँ पे मैकेनिज्म तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बना लिया है, मैकेनिज्म तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस मैकेनिज्म के अंदर अभी बहुत सारे डिटेल्स बाकी है। ओके, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।